some questions from the unit haloalkane and haloalane which was asked by the CBSE in 2024, and may this question will come in 2025 in the form of 1 mark question, means assertion based or MCQ based or 2 mark question. So because the basic concept of the unit will not change, in this unit we are having the two basic nucleophilic substitution reaction, that is SN1 reaction, which follow a first order kinetics, means in SN1 में क्या है, in SN1 the first order reaction है, first order, or we can say it will follow first order kinetics, chemical kinetic unit है ना, kinetic, means here the rate of the reaction will depend only on one of the reactant, and that is the alkyl halide. जो हमारा रिएक्शन है वो हैलाइड, जो हमारा अल्काइल और एराइल हैलाइड है उसी पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता. एंड दिस रिएक्शन विल गिव अस रेसिमिसेशन, मीन्स इसमें हमें जो प्रोडक्ट होता है दैट शो रेसिमिसेशन, मीन्स टोटली ये इनएक्टिव होता है, ये इसकी कोई पोलैरिटी लिवोरोटेटरी डेक्स्ट्रोरोटेटरी कुछ नहीं होता, द प्रोडक्ट इज टोटली ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, हियर ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट हमें मिलेगा इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 2 स्टेप्स पे होता है. हम कुछ बेसिक पॉइंट लिख लेते. 2 स्टेप्स एंड रेट विल डिपेंड, किस पे डिपेंड करेगा, रेट विल डिपेंड ऑन स्लोएस्ट स्टेप, एंड दैट इज एक्सक्यूज मी स्टेप, जो हमारा स्टेप 1 है वो बहुत स्लो है क्योंकि उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, वो इतनी जल्दी बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन जो है इट विल नॉट फॉर्म्ड इजीली, और अगर वो बन जाता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा. स्टेबल बनने के बाद वो ज़्यादा टाइम लेता है एंड देन इट विल गेट अ स्टेबल. तो यहाँ पे ये कुछ SN1 रिएक्शंस की मेन बातें हैं. And then we will have for SN2 reaction जो है, and one more thing for SN1 we will have tertiary halide will tertiary alkyl aryl halide will give the reaction first, then secondary, and then primary. This is the order of for SN1 reaction. Then for SN2 में क्या हो जाएगा, that is we will get, it is known as inversion of configuration. Inversion of configuration means जो product है that is 101% ऑप्टिकली एक्टिव है. प्रोडक्ट भी कैसा रहेगा, प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव बट इन्वर्जन, मीन्स अगर हमारा रिएक्टेंट जो है वो लीवोरोटेटरी है देन प्रोडक्ट विल बी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और अगर हमारा रिएक्टेंट जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी है देन प्रोडक्ट विल बी लीवोरोटेटरी. इन्वर्जन हो जाएगा. एंड दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. सिंगल स्टेप रिएक्शन है. Nucleophile always attack from the opposite side. Here the order is primary halide will give the first, then secondary, and then tertiary. तो यहाँ पे inversion of configuration, even जो inversion है it can be related with the inverted umbrella and product optically active होगा. Single step reaction है, so दोनों पे डिपेंड करता है. रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन द कमिंग न्यूक्लियोफाइल
as well as on the जो हमारा alkyl aryl halide है. So here we can say the reaction is second order. रिएक्शन कैसा है? सेकेंड ऑर्डर है, क्योंकि जो रिएक्शन है इट विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एज वेल एज द न्यूक्लियोफाइल. सो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं जो SN2 के हैं. एंड नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच वाज आस्क्ड by the CBSE in 2024. That is haloalkane react with sodium cyanide. Sodium cyanide जो कि टोटली आयनिक कंपाउंड है, सोडियम साइनाइड. एंड ए पार्ट, दिस वाज द 3 mark question divided into 3 parts carrying 1 mark each. Marking scheme takes up, this is the 1 mark and 1 mark and 1 mark. Sodium cyanide is a ionic compound, can be dissociate into sodium ion and cyanide ions. Here the cyanide जो ion है, carbon atom and nitrogen atom both can give the electrons, and we will get cyanides if the carbon will giving the electron and isocyanide if the nitrogen is giving the electron. So how we will write the answer? Like this or this, or sodium cyanide is ionic compound on dissociation will give, क्या दे देगा? Will give sodium ion and cyanide ion where carbon and नाइट्रोजन, बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है हेलोएल्केन पे, मींस जो एल्काइल हैलाइड है वहां पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है. एंड न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारा Cn है, इसमें कार्बन नाइट्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं. वेयर कार्बन एंड नाइट्रोजन आर both can give electrons. So the cyanides and isocyanides can be formed. दोनों ही बनाए जा सकते हैं. ओके, बिकॉज 1 mark question है, we should be write the answer briefly which should be totally understandable. हमने यहाँ पे इसको पहले डिसोशिएट कर दिया है. न्यूक्लियोफाइल जो साइनाइड है, यहाँ पे दोनों ही एटम जो है दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं. We can get a cyanide when carbon is giving and isocyanide when nitrogen is giving the electron. Let's move to the second question, that is haloarenes, means aromatic halo compounds के बारे में बात की जा रही है. Do not undergo nucleophilic substitution reaction easily. I started with SN1 and SN2 reaction. In SN1 I said tertiary halide will give the reaction first. Here the question is haloarenes means aromatic. Aromatic है, that is getting a stability due to resonance. कैसे? तो हम यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे? पहला, बहुत सारे रीजंस यहाँ पे बन जाते हैं. तो पहला आप लिखेंगे haloarenes do not undergo nucleophilic substitution, चाहे SN1 हो या SN2, do not undergo nucleophilic substitution reaction easily because
पहला रीजन बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस दी कार्बो, और ड्यू टू रेजोनेंस हम यहाँ पे भी कार्बोकैटायन बनाएंगे, ड्यू टू रेजोनेंस दी electrons of halogen will participate or delocalized with the pi electrons of benzene रिंग। क्या हो जाएगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग के, एज वी नो दैट कि बेंजीन रिंग जो है उसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, जो हम उसमें डबल बॉन्ड बनाते हैं। इट कैन बी एनीवेयर, एक छोड़ के हमने इस तरह बनाना होता है। अगर बेंजीन की बात करें तो बेंजीन को हम इस तरह से बनाते हैं, ये बेंजीन रिंग है। वी कैन इवन ड्रॉ लाइक दैट, हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये रेजोनेंस साइन मैंने बना दिया है, यहाँ बनाया, इस वक्त आप यहाँ बनाइए, एक छोड़ के यहाँ बनाइए, एक छोड़ के यहाँ बनाइए। एंड इवन वी कैन से कि ये जो स्ट्रक्चर है हम इसे समवेयर एल्स हम ऐसा भी बना सकते हैं। हमने डीलोकलाइज कर दी, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मूविंग। हेलोवेरिन्स में, अब हेलोवेरिन्स में क्या हो जाएगा, इन हेलोवेरिन्स बेंजीन रिंग तो चाहे आप ये वाली बना लो चाहे ये वाली बना लो, दोनों ही इक्वली स्टेबल है, ये दोनों इक्वली एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे हमने एक हेलो कंपाउंड बना दिया जिसके ऊपर 3 लोन पेयर है, ठीक है, 7 से वो अटैच। एज ए सेड की रेजोनेंस ये तो मूव करेंगे ही, तो यहाँ पे हम लोग ये जो रेजोनेंस आ जाए, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, दे विल आल्सो स्टार्ट मूविंग along with the pi electron of the ring. And what sort of the structure we are getting? We will get a double bond between, partial double bond आ जाएगा किसके बीच में, and halogen जिसके ऊपर कभी नेगेटिव चार्ज होता है, अभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। That is a partial positive charge will come on a halogen atom, normally नहीं होता। What will happen? Carbon is less electronegative and the halogens are more electronegative. But here, due to delocalization, the electron density is getting high and no more nucleophile need to be there, वहां पे चाहिए ही नहीं। तो ये पॉजिटिव साइन यहाँ पे आ गया, एंड व्हाट वी आर हैविंग, हमने यहाँ पे डेंसिटी हाई कर देनी है और ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो चुका है, तो रेस्ट वी कैन ड्रॉ लाइक दैट। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल मूव फर्दर, क्योंकि डीलोकलाइजेशन तो होती ही रहती है रिंग के अंदर, एंड व्हाट विल हैपन, वी विल गेट वन मोर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, एंड नाउ द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी एट अ पैरा पोजीशन, partial double bond will be there between halogen and carbon, and a partial positive charge will be on a halogen atom. Now what will happen, this ये जो electron density it will move further, and we will get now again the high electron density at ortho position. So what we will get, that is इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव आउट कर जाएंगे, एंड व्हाट वी विल हैव दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ मूवमेंट तब तक होती रहेगी जहां से आए वहीं तब तक ना पहुंच जाए। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल मूव फर्दर, एंड हमने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पहुंच गए। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, वापस 3 लोन पेयर अवेलेबल हो जाएंगे। नाउ वी आर हैविंग दिस स्ट्रक्चर। ड्यू टू दिस delocalization, the halogen atom is not leaving that benzene ring easily and they are more stable। और यहाँ पे
जो हेलोजन एटम है इट विल अटेन अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये रीजन है कि ये जल्दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। दूसरा रीजन है, द सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ partial double bond, partial double bond between carbon and halo atom. So sp2 hybridization will come there, bond length sp2 hybridization हो जाएगी, bond length get shorter, छोटी हो जाएगी सिंगल बॉन्ड के हिसाब से। s character of carbon atom will increase, so it is difficult to break that bond, उसको तोड़ ही नहीं पाएंगे, पार्शियली बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसकी लेंथ छोटी हो गई है, sp2 करेक्टर आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गई है, जिसके कारण जो s है दैट विल गेट इंक्रीज। अगर sp3 होता है तो 25% ही s करेक्टर होता है, अब यहाँ पे 33.3 करेक्टर हो गया, मींस बढ़ गया है, और बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई है, और यहाँ पे इसे अब जो हम अगर डिसोशिएट या बॉन्ड लेंथ को तोड़ना चाहे तो इट इज लिटिल डिफिकल्ट। तो दैट इज व्हाई haloarenes do not go under nucleophilic substitution reaction easily. These are the reasons. 1 mark है, either you can draw this resonance structure, it's okay, or if you are writing then it's okay also, because 1 mark है तो हमारा आंसर जो है वो ब्रीफ होना चाहिए, अंडरस्टैंड जो भी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि हाउ एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेंजाइल क्लोराइड। नाउ बेंजाइल क्लोराइड जो है दे आर गिविंग SN1 reaction. Why they are giving SN1 reaction? So C part है, that is benzyl, benzene ring है, and chloride means हमारे पास 2 and Cl, क्लोराइड लिखा है, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड हमने बना लिया, ये SN1 रिएक्शन देगा। Why it is so? We know that now this halogen is not directly attached with the sp2, जो हमारा sp2 कार्बन है उससे डायरेक्टली अटैच नहीं है, इट इज अटैच्ड विद the sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो here अगर हम इसको देखें तो किस इस तरह में बना सकते हैं, दिस कैन बी ऑल्सो ड्रॉन लाइक दिस, ये हमने बना लिया बेंजीन रिंग, और ये बना लिया कार्बन, कार्बन के साथ हमने 2 हाइड्रोजन, और ये बना लिया क्लोराइड। अब ये जो क्लोरीन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे जो इसके लोन पेयर है दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन अ कंजुगेशन, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो sp3 कार्बन के साथ है, sp2 कार्बन के साथ नहीं है। देन व्हाट विल हैपन, दिस विल अटेन अ पार्शियल negative charge and this will attain a partial positive charge, and what we will get a कार्बोकैटायन जिसके ऊपर प्लस का चार्ज, प्लस लीविंग ग्रुप जो है उसके ऊपर क्लोराइड आयन बन गया है। ये हमें हमारा स्टेप 1 रिएक्शन, ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगा और ये SN1 रिएक्शन देगा, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे कार्बोकैटायन बनाएंगे। अब क्लोराइड जो था वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच था, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे
जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन पे आ गया, देन व्हाट विल हैपन अगेन, यहाँ पे ये स्टेबल हो गया। कैसे स्टेबल हो गया? ड्यू टू रेजोनेंस। सो हियर द कार्बोकैटायन स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। अब रीजन क्या था कि जो हमारा हैलाइड था वो डायरेक्टली अटैच रिंग के साथ नहीं था, तो वो लीव कर जाएगा। जो कार्बोकैटायन बना है इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू दी, यहाँ पे रेजोनेंस वर्क कर जाएगा, और यहाँ पे जब रेजोनेंस वर्क करता है तो ये इस तरह से जो हमारे बेंजाइल क्लोराइड है वो क्या देंगे? SN1 रिएक्शन। यहाँ पे भी रेजोनेंस वर्क करता है, दैट इज इस तरह से हम इसको बना लेंगे। यहाँ पे प्लस का चार्ज है और 2H हमने इस तरह बना लिए और ये लेंगे। अब क्या है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है दे विल गिव इलेक्ट्रॉन टू दिस वन एंड द पॉजिटिव चार्ज विल कम। अब इसीलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे अब ये चार्ज इसके पास नहीं रहेगा, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है इलेक्ट्रॉन जो दे दिए हैं, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये एज इट इज ही रहेगा। नाउ दिस आगे को मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? दैट इज ये पॉजिटिव चार्ज अब पैरा पोजीशन पे आ गया है एंड यहाँ जो कार्बन है इसके पास H आप इस तरह लिख लो और इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, डबल बॉन्ड आ गया है। नाउ अब हमारे पास क्या हो गया? दैट इज एक और हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव फर्दर करेंगे और यहाँ पे अब ऑर्थो पोजीशन पे चार्ज आ गया है एंड नाउ वी आर हैविंग दिस स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड आ गया कार्बन के और इस कार्बन के बीच में एंड देन दिस विल अगेन मूव बैक एंड हमारे पास जो जहाँ से स्टार्ट किया था वही स्ट्रक्चर वापस आ जाएगा, सिर्फ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो गए हैं। सो इस तरह से अब ये जो बेंजाइल क्लोराइड था ये हमारा डबल स्टेप में या 2 स्टेप में होगा और यहाँ पे रिएक्शन जो है स्लोएस्ट स्टेप पे अटैक करता है। रेजोनेंस से ये कार्बोकैटायन स्टेबल है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अब पैरा पोजीशन या ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकता है। सो हियर द आंसर व्हाई बेंजील क्लोराइड गिव्स SN1 रिएक्शन, बिकॉज हियर द हैलाइड जो हमारा या हैलोजन है that was attached with the sp3 hybridized जो कार्बन था उससे अटैच था, रिंग के साथ नहीं था। और पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा और देन ये कार्बोकैटायन भी स्टेबल है, तो फिर जो रिएक्शन होगा दैट विल बी जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है।